At the same time, when you are, beta, I cannot see you. Hello? Can you hear me? Message? Okay. Now, those exercises in which we don't see any movement. Suppose you are sitting in one posture without moving, without giving any movement to your body organs, right? So that exercises are known as the isometric exercise. You can say it, force applied by the muscle is lesser than the force of resistance, due to which we cannot see any movement. Suppose you have to push the wall, right? You cannot push the wall. You apply the full force for 5 minutes or 6 minutes. Don't break it, right? When you're applying the force on a wall, एक force लगाया और लगाते ही रहे उस पे, ठीक है? उसको पीछे नहीं, आप हटे नहीं वहां से, right? तो how long you are going to sustain that posture? Maybe 5 minutes, 6 minutes, right? After that you'll get exhausted. Means your energy, whatever the energy present in your muscle, it will exhaust, means used up. जब आपके मसल की एनर्जी पूरी यूज हो जाएगी तो आप थक जाएंगे तो आप बैठ जाएंगे. तो इस तरह के एक्सरसाइजेस जिसमें वी कैनॉट सी any movement, but the work is done, the energy is used, muscle is using power, right? So they are known as the isometric exercises. आप जितनी भी योगा की एक्सरसाइज, जो आसन होते हैं ना, all the asanas, तो you go in any of the asan for half an hour or maybe 1 hour, तो that is purely isometric exercise. जब आप एक वज्रासन में बैठ गए, आप सपोज करिए आपने वज्रासन ले लिया, एक पोस्चर है वज्रासन का, और यू आर सिटिंग इन दैट आसन, तो फिर आप कोई मूवमेंट नहीं होगा, बस आपने ध्यान लगा के बैठ गए. यू आर स्टार्टेड मेडिटेटिंग. तो हैव यू एवर सी दैट व्हाइल मेडिटेटिंग यू आर डूइंग एनी टाइप ऑफ वर्क, right? No, you will have to sit in any, whether you have to sit in the Padmasana or maybe in Sukhasana or maybe in Vajrasana. There are so many asanas are there, and there you will have to think. So you are just working on your brain, which is not visible. While you are coming in any of the asana, you can see the movement. Once you have taken the asana, once you have sit in that asana, once you have followed that posture, right, now the exercise begins. Whereas in isotonic exercise, you throughout, right from the rep number 1 till the last rep, you can see the movement आपको दिखता है, but isometric exercise में movement नहीं दिखता है. तो isotonic को आप ऐसे mention करेंगे, define करेंगे. Force applied by the muscle is greater than the force of resistance, due to which we can see the movement, right, in the muscle. Expansion and contraction, right, that is the only movement in the muscle, right? Whereas force applied by the muscle is lesser than the force of resistance. जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, वॉल को यू विल हैव टू पुश. तो आप में से कोई नहीं कर पाएगा, पूरी क्लास भी लग जाएगी, वॉल वहीं की वहीं रहेगी, बट पूरी क्लास जरूर थक जाएगी, राइट? तो यू कैनॉट पुल और पुश द वॉल, राइट? हाँ, तोड़ सकते हो, दैट इज द अनदर थिंग, बट उसको ताकत से आप आगे पीछे नहीं कर सकते, राइट? जब तक आप कोई मशीन्स का इस्तेमाल ना करें, वो अलग की बात है. Or coming in any of the posture, especially in meditating, when you are meditating. So if now the another point, which is the best exercise. See, if you want that you should look very broad, muscular, right? So you will go for the isotonic exercise. If you want thin, lean, swift, right? And your elasticity level should be more than 100%, right? Elasticity, matlab expansion and contraction, right? Your stretching level, right? It should be there. So you will go to this side. But internally, मतलब will power की अगर हम बात करें, तो which is the best one? तो isometric is the way better than isotonic exercise, right? Why? Because in isometric exercise, we people started working from the brain,
Whereas in isometric, isotonic exercise, we people started working from the muscle, right? हर काम हम ताकत से करने की कोशिश करते हैं, ब्रेन को थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, whereas ब्रेन को हमेशा आगे रखना चाहिए. तो the best is what combo of both the thing. You should look good also and at the same time you should. तो आपका जो शेड्यूल होना चाहिए, अभी साइंटिफिक ट्रेनिंग में जब हम बात करते हैं, स्पेशली इन फिजिकल एजुकेशन, तो कॉम्बो ऑफ बोथ द एक्सरसाइज. आपने देखा होगा कि 3 दिन आप क्या बोलते हैं कि वेट ट्रेनिंग करते हैं, तो 3 दिन आप ग्राउंड एक्टिविटीज करते हैं जिसमें मैक्सिमम आप अपने ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, या उसके साथ ही आप स्किल ट्रेनिंग करते हैं. तो स्किल ट्रेनिंग टोटली बेस्ड ऑन ब्रेन, राइट? तो वो पूरा सोचती है उस पर, काउंटर ऑफ काउंटर कैसे बनाते हैं, अटैक कैसे कर रहे हैं, डिफेंड कैसे कर रहे हैं, तो सो मेनी थिंग्स. तो आइसोटोनिक एंड आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, तो इफ यू आस्क मी, तो कॉम्बो इज द बेस्ट वन. अदरवाइज आपने देखा है कि योगा तो पूरे वर्ल्ड वाइड, आज योगा डे भी है, तो आपने देखा पूरा वर्ल्ड वाइड बहुत नाम मिल रहा है योगा को. तो योगा इज बेस्ट, बट एट द सेम टाइम दिस इज ऑल्सो, आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज द वर्स्ट. One is best and one is worst. No, this isometric. Why? Because top to bottom, the level of force is equal. ये समझने की कोशिश है. अगर आपने ऐसे हाथ किया है तो जितना ताकत आपके स्टेप में होगा उतना ही ताकत यहाँ पे होगा, राइट? Whereas जब आप आइसोटोनिक एक्सरसाइज करते हैं तो दैट मीन्स जितना ताकत आपके बाइसेप्स में है उतना ताकत आपके फोरआर्म्स में नहीं होगा, उतना ताकत आपके शोल्डर में नहीं होगा, राइट? चेस्ट में ज्यादा होगा. तो डिविजन ऑफ पावर इज डिफरेंट, राइट? इन आइसोटोनिक एक्सरसाइज आप आइसोटोनिक को एक तरह से स्पेसिफिक एक्सरसाइज भी कर सकते हैं. जिस ऑर्गन को आपको ज्यादा डेवलप करना है उस पर आप ज्यादा वर्क करते हैं, बाकी के ऑर्गन फिर डेवलप नहीं करते हैं. द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेट आप वहां पे करते हैं, ठीक है? तो मेन होता है द ऑर्गन ऑन विच यू आर वर्किंग. Whereas in isometric exercises मेन होता है टोटल आपका कार्डियक मसल, टोटल बॉडी पे इक्वल फोर्स अप्लाई होता है, पूरा कॉन्सेंट्रेट आप पूरे बॉडी को करते हैं. आपने पद्मासन भी लगाया ना तो आपका बैक भी स्ट्रांग हो रहा है, राइट? बैक भी स्ट्रांग हो रहा है, ठीक? आपका नेक भी स्ट्रांग हो रहा है, आपके हाथ भी स्ट्रांग हो रहे हैं, पोस्चर में आप आ रहे हैं, तो टोटल बॉडी गवर्न्स है. Whereas आप जिमिंग का कोई भी आइसोटोनिक एक्सरसाइज करते हैं तो विच एवर द ऑर्गन यू आर वर्किंग, दैट ऑर्गन विल गेटिंग द मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एंड जितने भी उससे एसोसिएटेड ऑर्गन्स हैं या एसोसिएटेड मसल्स हैं उनको सेकेंड और थर्ड ग्रेड पे रखा जाता है, राइट? सपोज इफ यू आर डूइंग एट द सेम टाइम यू आर डूइंग द डंबल, राइट? कर्लिंग. If you are standing and doing, then 60% will be the power will be used here. The benefit you will get it on your biceps, and 40% is divided into whole body. क्योंकि आप posture भी आपको करेक्ट रखना होगा, ठीक है? पैर भी स्ट्रांग हो रहे हैं, बैक भी स्ट्रांग हो रहा है, नेक भी स्ट्रांग हो रहा है, बट वो अब 40% को पूरे बॉडी में डिवाइड कर दो. यहाँ पे पूरे बॉडी पे 100% आपके एक्सरसाइज के इफेक्ट्स मिलते हैं. Whereas isotonic, that's why I have said the combo of both the exercises are always good, better. अब आप एक ही एक्सरसाइज को कर रहे हैं और रोज ही करते चले जा रहे हैं, इट्स ऑफ नो यूज. एक ही एक्सरसाइज अगर आप सपोज करिए कि आप रोज बेंच प्रेस ही कर रहे हैं, आइसोटोनिक में ही जाना है, आई शुड लुक ब्रॉड, राइट? तो बेंच प्रेस ही रोज करते जा रहे हैं तो उसमें कोई वो नहीं है, कोई फायदा नहीं है उसमें, राइट? फिर बाकी के ऑर्गन्स आपके उससे बहुत पीछे रह जाएंगे, डेवलपमेंट में बहुत पीछे रह जाएंगे. दैट मीन्स दे आर नॉट ग्रोइंग इक्वली. व्हाई? बिकॉज यू आर वर्किंग ओनली ऑन योर पेक्टोरल मसल्स. उसके बाद बाकी के मसल्स पे कोई काम ही नहीं होगा आपका. चलिए, बट इन आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस यू आर वर्किंग, ठीक है? आप तो सिर्फ एक पोस्चर में आए, बट वो पोस्चर पूरी बॉडी पे इक्वल फोकस कर रहा है, इक्वल कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, उस पूरी बॉडी पे इक्वली वो एनर्जी सप्लाई कर रहा है, पूरी बॉडी को इक्वली वो डेवलप कर रहा है. तो इसलिए ये वाली थोड़ी सी ज्यादा एक्सरसाइजेस होती हैं. अच्छा, यहाँ पे एडवांटेजेस क्या होते हैं दोनों एक्सरसाइज के? देखो, आइसोटोनिक एक्सरसाइज में आप एवरी डे यू कैन सी द ग्रोथ. आपके मसल बढ़ते चले जाएंगे, आपका वेट बढ़ता चला जाएगा, आप
बल्कि होते चले जाएंगे, बहुत क्लैरिटी आती, डेफिनेशन आती चली जाएगी मसल में, राइट? तो इट्स विजिबल, डे बाय डे इट्स विजिबल, यू आर चेंजिंग, आपका एनर्जी लेवल बढ़ता, आई मीन टू से द एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी की बात कर रहा हूं, वो लेवल बढ़ता चला जाएगा। वेयर एज इन आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में आप थिन, लीन रहेंगे, मसल ग्रो नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि आप योगा कर रहे हैं और आपके ये बहुत मस्कुलर हो रखे हैं, आप बहुत ज्यादा, आपका आपका स्ट्रेचिंग लेवल बहुत बहुत ज्यादा होगा, राइट? उसका तो कोई कंपेयर कर ही नहीं सकता। डिफरेंट पोस्चर्स में आके यू कैन come in different posture and you work on that posture for hours and hours and hours. आपने सपोज करिए कि कोई एक नौका आसन ले लिया, नौका फॉर्मेशन में आप आ गए, आई मीन टू से द बोट फॉर्मेशन में आ गए। एक लेमैन विल नॉट डू इट हार्डली 2 minutes or 3 minutes, ठीक, इट्स मोर देन एनफ फॉर हिम, बट योगा पर्सन कैन डू इट फॉर आवर्स एंड आवर्स। तो उनका जो बैलेंसिंग है बॉडी का, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बैलेंसिंग, उस पर पूरा फोर्स, दैट द कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल, राइट? जो स्ट्रेच लेवल हो रहा है जो और जो एक्सटेंशन हो रहे हैं, दैट इज इक्वल। सारी की सारी चीजें टॉप टू बॉटम यूज होती। तो इन आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज द होल बॉडी वर्क, बट वी कैन नॉट सी एनी चेंजेस, राइट? हाँ, आपका थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि वेट नीचे होने लगेगा, यहाँ पे वेट गेन भी होता है, यहाँ पे वेट शेड भी होता है। इफ यू वांट टू गेन द वेट तो डाइट इज देयर, राइट? इफ यू वांट टू शेड द वेट तो अगेन द डाइट एंड एक्सरसाइज इज देयर, बट यहाँ पे आपका एज सच यू हार्डली फाइंड एनी गेन, राइट? थिन एंड लीन होते चले जाएंगे, एक्टिव होंगे, स्विफ्ट होंगे, यू विल बिकम वेरी एक्टिव, वेरी एनर्जेटिक, वेरी एंथुजियास्टिक, right? You will become very swift, बहुत fast हो जाएंगे, your reflexes are also good, right? Here, if you compare both of them, तो ये 100% है, तो ये 80% होंगे, right? तो ये इतना सा डिफरेंस होगा, the difference of two. ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है, there is no such parameter who is good and who is bad, but on the basis of these things only, तो you can grade them. the 120 का डिफरेंस रहेगा, right? मतलब कि आप जो डिफरेंस है वो 20 का रहेगा, ये 100 है, ये 80 है, तो व्हाट इज द डिफरेंस? दैट इज फॉर द 20। इनका अपना एडवांटेज है, इनका अपना एडवांटेज है। यहां पे ड्यूरेशन बहुत लंबा नहीं रह सकता है, बट यहां पे ड्यूरेशन बहुत लंबा आप कर सकते हैं, आई मीन टू से द परफॉर्मिंग ड्यूरेशन। हाउ लॉन्ग यू कैन डू आइसोटोनिक एक्सरसाइज, जब तक आप अपने पे कंट्रोल कर सकते हैं, जब तक आपसे वेट संभल रहा है, राइट? व्हेन यू आर एबल टू कंट्रोल ऑन योरसेल्फ, राइट? जब तक आपका अपने ऊपर कंट्रोल है, एट द एज ऑफ मे बी मैक्स टू मैक्स 50 or 55, द एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, यू मस्ट हैव सीन सर 70s 80s में भी लोग कर रहे हैं, यार डूइंग, राइट? बट जस्ट काउंट द नंबर्स, कितने लोग कर रहे हैं? मैक्सिमम आइसोटोनिक एक्सरसाइज में यंगस्टर्स होते हैं, राइट? मैक्सिमम यंगस्टर्स आर देयर, एंड और जितने भी एल्डर लोग हैं वो बहुत कम होते हैं। यू कैन काउंट ऑन योर फिंगर टिप्स, द नंबर यू कैन काउंट ऑन योर फिंगर टिप, बट यहां पे यू कैन सी, यू कैन वॉट एवर द एजेस you are having, right? Whatever is your age, forget about the age, you can perform these exercise at any age. तो ये है, बट यहाँ पे एक बारिंग हो जाता है कि इस एज के बाद हम इतना ज्यादा उठा नहीं पाएंगे, इंजरी प्रोन हो जाते हैं एक टाइम के बाद। यहाँ पे आप स्पेशली इन आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस में आप इंजरी प्रोन हो जाते हैं, राइट? थोड़ा सा ज्यादा करा, थोड़ा सा भी गलत हो गया तो इंजरी हो जाएगी, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। इंजरीज के लिए कोई इतना जगह नहीं होती। व्हाई? बिकॉज आपकी बॉडी में इतना ज्यादा इलास्टिसिटी होता है। मतलब आप वो क्या बोलेंगे इलास्टिसिटी को, यू कैन सी द रबर बैंड, तो यू कैन स्ट्रेच इट, राइट? और उसको वापस पीछे ले जाओ। बट यहाँ पे क्या होगा, अगर जो स्ट्रेच करेंगे तो वहीं पे रख जाएगा वो। एट द टाइम ऑफ स्ट्रेच तो वो एक दो मसल फाइबर टूट सकते हैं, राइट? तो पेन होगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। तो दैट्स व्हाई
इट्स बेटर. वाई? बिकॉज यू कैन, इसका इंपॉर्टेंस है भी कि बहुत लंबा इसका टेन्योर आप कर सकते हैं. आप मे बी 80s के हैं, 90 ईयर्स के भी लोग करते हैं योगा, राइट? यहाँ पे भी करते होंगे बट उनका नंबर बहुत कम है. वर्ल्ड वाइड इफ यू सी तो नंबर इज वेरी लेस. यहाँ पे वर्ल्ड वाइड इफ यू सी तो नंबर इज वेरी हाई. तो इसलिए ही इसको थोड़ा सा ऊपर करा गया है. बट इफ यू, वेरी फाइन डिफरेंस इज देयर इन दिस. एंड द बेस्ट होगा क्या? इफ यू डू द कॉम्बो ऑफ बोथ द थिंग्स. अगर कॉम्बो कर, कॉम्बो मीन्स ये भी दोनों एक्सरसाइज का मिक्सचर करेगी. जैसे आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक आप कर रहे हैं तो इसका मिक्सचर जो हो जाएगा दैट बिकम्स द आइसोकाइनेटिक. तो दिस इज द कॉम्बो जो आपके कोर्स में नहीं है बट यू शुड नो दिस. व्हाट इज आइसोकाइनेटिक? इट्स एक जगह आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दूसरी जगह आप स्ट्रेच कर रहे हैं, राइट? तो मतलब कहने का मतलब है कि कॉम्बो में आप जिस मसल पे वर्क कर रहे हैं, फर्स्ट यू आर वर्किंग ऑन दैट मसल, तो यू आर टोनिंग इट, राइट? यू आर गिविंग स्ट्रेस टू दैट मसल. जब काम करते हो तो मसल में बहुत स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है मसल का. देन विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेचिंग, वो स्ट्रेचिंग से आप उसे नॉर्मल कर देते हैं, राइट? उसकी इलास्टिसिटी को बढ़ा देते हैं. तो दैट्स व्हाई तो कॉम्बो इज ऑलवेज गुड. बट कोई कॉम्बो करता नहीं है, बट करना चाहिए आपको. दैट आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक एंड आइसोकाइनेटिक, इट्स, I don't know why the isokinetic is not given in your course, but जो कोर्स में है, बट आपको ये जानना बहुत जरूरी. तो कॉम्बो हमेशा करिए, राइट? कॉम्बो हमेशा करिए, आप हमेशा करते रहेंगे क्योंकि इंजरीज, यू विल नेवर फेस इंजरी इन योर लाइफ. एंड नेवर, वन मोर थिंग, नेवर ट्राई टू फाइट विथ योर सेल्फ. नहीं, आज तो हमें इतना वेट उठा नहीं है, नो, नहीं उठ रहा, छोड़ दो. लड़ो नहीं, लड़ोगे तो आप वेट से नहीं जीत पाओगे, राइट? इंजर्ड हो जाओगे. तो ऐसा नहीं करना है. आज नहीं उठा पा रहे, 10 दिन के बाद उठ जाएगा, राइट? तो यू वोंट हैव टू फाइट. तो इंपॉर्टेंस, विच एक्सरसाइज इज बेटर, आई मीन टू से आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक. तो ये तो क्लियर हो गई. अब आइसोटोनिक में दो और जो मूवमेंट है, आइसोटोनिक में एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, राइट? तो कॉन्सेंट्रिक एक्सरसाइज and eccentric exercise. तो means when you are lifting the weight, मतलब जब आपने वेट को लिया उस टाइम पे कितना स्ट्रेच दे रहे हैं आप. जब वेट ले रहे हैं तो थोड़ा सा हैवी वेट लेंगे आप, राइट? यू आर टेकिंग द हैवी वेट. एंड व्हेन यू आर टेकिंग हैवी वेट एट द टाइम क्या होगा कि आपका हाथ और वट एवर द वेट यू आर टेकिंग तो एकदम स्ट्रेट रहेगा. तो स्ट्रेच लेवल बहुत, एक्सटेंशन जबरदस्त रहेगा, हाथ खींच लेगा. नाउ यू आर लिफ्टिंग द वेट. तो व्हेन यू आर लिफ्टिंग दैट मीन्स यू आर कॉन्ट्रैक्टिंग योर मसल. तो दिस कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ कॉन्सेंट्रिक एक्सरसाइज. मीन्स आप जब वेट उठा रहे हो, आइसोटोनिक इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, कॉन्सेंट्रिक एंड एक्सेंट्रिक, राइट? तो व्हेन यू आर, जब भी आप कभी जाके जिम में भी देखिएगा तो वेट जब भी उठाएंगे तो हाथ एकदम सीधा हो जाएगा, राइट? स्पेशली जब कर्ल्स करते, डंबल में तो आप थोड़ा सा फ्री हाथ को टेढ़ा कर सकते हैं. बट व्हाइल यू आर ब्रिंगिंग द वेट और व्हेन यू आर contracting your muscle, right? So that is concentric exercises. And lowering the weight, जब आप उठा के ला रहे हो और उसके बाद उसको नीचे ले जा रहे हो, तो when you are bringing up at that time, concentric exercise, concentric movement is there. At the same time, when you are lowering the weight, जब आप उसको नीचे ले जा रहे हो, तो this become the eccentric. तो ascend कर जाता है, right? पहले में आप जब concentric कर रहे हैं, muscle will flex, और जब आप lower कर रहे हैं weight को, when you are lowering the weight at that time, extension is there, right? Stretch, muscle को stretch कर रहे हैं. तो यही है सिंपल सा. वेट को ऊपर उठाना, वेट लिफ्ट करना, कॉन्सेंट्रिक एक्सरसाइज. लोवरिंग द वेट इज एक्सेंट्रिक एक्सरसाइज. तो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन या फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, कुछ भी आप इसको करो, कॉन्सेंट्रिक एक्सरसाइज या एसेंट्रिक एक्सरसाइज, कंस्ट्रक्शन और एक्सटेंशन, राइट? कुछ भी आप बोलो इसको. आइसोटोनिक एक्सरसाइज में ये दो और एक्सरसाइज जब आप उठा रहे हो, कॉन्सेंट्रिक एक्सरसाइज, when you are lowering the weight, that's eccentric exercise, right? ये हो गया आपका. अब बात आती है कि वेट ट्रेनिंग.
जो लास्ट टॉपिक है आपका एक्सरसाइज का पूरा, वार्मिंग अप यहाँ पे भी चलती है, ग्राउंड एक्टिविटीज में चलती है, तो कांट डू एनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग विदाउट द वार्मिंग अप. तो वंस यू हैव वार्म्ड अप योरसेल्फ, नाउ यू कम फॉर द वेट ट्रेनिंग. प्योरली वेट ट्रेनिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो व्हाट इज वेट ट्रेनिंग? फॉर परफॉर्मिंग योर वेट ट्रेनिंग वी हैव टू डिवाइड दिस बॉडी इन टू पार्ट. तो अपर बॉडी, above the waist level is the upper body, and below the your tummy region is the lower body, right? Now upper body consists of your shoulders, your arms, your back, your chest, your tummy, right? Lower body consists of your hamstrings, quadriceps, calves, legs. सीधा सा आप बोल दो. तो नॉर्मली टमी वाले रीजन को हम लोअर बॉडी में ले जाते हैं, टमी वाले रीजन को हम लोअर बॉडी में ले जाते हैं, बट वो है नहीं. कभी आप ऊपर भी कर सकते हो, तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस आर लेस एज कंपेयर टू अपर बॉडी, दैट्स व्हाई हम टमी को नीचे शिफ्ट कर देते हैं. नाउ द नेम ऑफ एक्सरसाइज हियर यू हैव टू राइट. व्हेन यू आर परफॉर्मिंग आर्म्स, फॉर आर्म्स what are those exercises, और आर्म्स के लिए वो कौन सी एक्सरसाइज हैं जो which you will perform to develop your arms. तो आपने देखा होगा कि आर्म्स के लिए आप डंबल करते हैं ना, कर्लिंग. डंबल से जब आप रेप्स करते हैं, राइट, कॉन्सेंट्रिक एक्सरसाइज, एसेंट्रिक एक्सरसाइज, तो दैट इज नोन एज द कर्लिंग. जब आप डंबल से करते हैं दैट इज नोन एज द कर्लिंग. अच्छा, आर्म्स में मसल जो बेसिकली जो मेन मसल है दैट इज द बाइसेप्स, द ट्राइसेप्स एंड द फोर आर्म्स एंड द रिस्ट. तो रिस्ट कोई मसल नहीं है, इट्स अ जॉइंट. तो उसके लिए अलग ही एक ही एक्सरसाइज है. इनके लिए क्या एक्सरसाइज करते हैं? वॉट एवर द एक्सरसाइज यू आर डूइंग फॉर द रिस्ट, एक्जैक्टली द सेम एक्सरसाइज विल वर्क हियर. तो इसको बाद में डिस्कस करेंगे. मेन एक्सरसाइज यहाँ की है वो बता देते हैं आपको. वो बुक में आप देखिएगा, आपको एक सारी एक्सरसाइज एक साथ लिखी है, ऐसे डिस्टिंग्विश करके नहीं दिया गया कि ये एक्सरसाइज आर्म्स की हैं, ये एक्सरसाइज आपके चेस्ट की हैं, ये बैक की हैं और ये लेग्स की हैं. ऐसा नहीं दिया गया, एक साथ सारी एक्सरसाइज दे दी गई. तो बट आप उसको आर्म्स पहले अपर बॉडी में डिवाइड करिए. अपर बॉडी कंसिस्ट ऑफ आर्म्स, योर चेस्ट, योर बैक, योर शोल्डर्स, राइट. तो आर्म्स, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स. बाइसेप्स में क्या है और ट्राइसेप्स में क्या है? बाइसेप्स सबको पता है कि भाई कर्लिंग सब कर रहे हैं, एवरीबॉडी इज डूइंग कर्लिंग, राइट. तो डंबल कर्लिंग मीन्स एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, राइट, लोअरिंग द वेट एंड एक्सटेंडिंग द वेट. आप उसको उठा भी रहे हो, ठीक, या आप कर्ल करो, तो उसको स्पेसिफाई कैसे करोगे? डंबल कर्ल. तो मीन्स व्हेन यू आर डूइंग विद द डंबल्स, छोटे छोटे डिवाइस होते हैं, वेट होता है, उसको आप करते हैं. तो दैट इज डंबल कर्ल. एट द सेम टाइम यू डू विद द रॉड ऑल्सो. रॉड और प्लेट्स लगा देते हैं, तो उसको बार्बल कर्ल बोलते हैं, बार्बल कर्ल, राइट. तो डंबल कर्ल, बार्बल कर्ल. फिर मशीन पे जाते हैं आप, एक्सक्यूज मी, मशीन पे जाते हैं आप, तो उस पे क्या करते हैं? प्रेचर. आप हाथ को एकदम सीधे करते हैं एंड यू विल डू इट लाइक दिस. तो जिम में जाएंगे तो यहाँ पे मशीन है नहीं, अदरवाइज आई वुड हैव shown you how to perform such type of exercises. तो प्रेचर कर्ल. देन वो केबल से करते हैं, मशीन होता है उसमें केबल लगा रहता है, केबल में वेट अटैच्ड होता है. देन वी डू द केबल कर्ल. नॉर्मली इस तरह के हम एक्सरसाइजेस बहुत करते हैं, राइट. फिर आ जाते हैं हैमर कर्ल. उसमें एक चेयर फॉर्मेशन में हम बैठते हैं और ज्यादा से ज्यादा वेट लेते हैं और सेकंड हैंड से अपने दूसरे हाथ से सपोर्ट लेते हैं, उसको करते हैं. तो डंबल कर्ल, बार्बल कर्ल, प्रेचर कर्ल, हैमर कर्ल, ये तो हो गई मेन एक्सरसाइज. उसके बाद आते हैं ट्राइसेप्स पे. तो किक बैक आपने देखा होगा, बेंच, रिवर्स बेंच प्रेस, आई मीन टू से द बेंच डिप्स, रिवर्स आप ऐसे हाथ रख के करते हैं, राइट. और केबल कर्ल करते हैं, राइट, किक बैक करते हैं, तो इससे ये ट्राइसेप्स बनता है. और रिस्ट रोलिंग करते हैं तो उससे रिस्ट बन जाता है. तो ये जो सबसे पॉपुलर एक्सरसाइजेस हैं वो मैंने आपको बता दी है. और क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस से भी आपके ट्राइसेप्स पे इफेक्ट पड़ता है. तो ये हाथ की एक्सरसाइज हो गई. फिर आप आ जाते हैं चेस्ट पे, राइट. तो पुशअप से चेस्ट लिखा एंड द नेम ऑफ द एक्सरसाइज,
under this. So what are those exercises which will be performed for developing your pectoral muscles? So chest muscle, so that is what the push-ups, then bench press, broad grip, close grip एंड नैरो ग्रिप. नैरो ग्रिप हो जाती है आपकी किसके लिए? नैरो ग्रिप आपकी आ जाती है जो नैरो, जिसको क्लोज ग्रिप बोलते हैं, दैट इज द नैरो ग्रिप. नैरो ग्रिप आ जाती है आपकी ट्राइसेप्स के लिए. तो यहां से ट्राइसेप्स पे भी एक हो जाता है. तो ब्रॉड ग्रिप, पूरा हाथ को ब्रॉड करके यू आर परफॉर्मिंग. देन योर क्लोज ग्रिप, देन नैरो ग्रिप, एकदम से नैरो कर देते हैं आप उसको. उसके बाद आप आते हैं, अच्छा ये है आपका जो बेंच प्रेस है. इंक्लिनेशन पे बेंच करते हैं, फ्लैट बेंच एंड डिक्लिनेशन पे आप करते हैं. तो इंक्लाइन एंड डिक्लाइन, राइट. तो ये बेंच, एक जैसे आप बेंच तो आप सब जानते हैं ना, बेंच को 3 फॉर्म पे, इंक्लाइन पे ले जाते हैं एंड डिक्लाइन कर देते हैं, और फ्लैट पे भी एक्सरसाइज वही है. फिर उसके बाद आप डंबल से भी करते हैं, राइट. तो ये आपके चेस्ट के एक्सरसाइज हो गई. देन कम टू द बैक एक्सरसाइज. तो एक मशीन होता है, बैक का एक मशीन होता है, उस पे आप करते हैं. अच्छा, पुलअप्स भी बैक पे इफेक्ट करता है. पुलअप्स की एक्सरसाइज भी बैक पे वर्क करती है. तो पुलअप्स आप लेंगे, और क्या बोलते हैं कि आप जब बैक पे जाते हैं तो लैट पुल डाउन मशीन का नाम है. तो अगेन सामने से करते हैं और रिवर्स करते हैं, पीछे से करते हैं, राइट. तो लैट पुल डाउन, ब्रॉड ग्रिप, क्लोज ग्रिप, नैरो ग्रिप, ये 3 ग्रिप्स होती हैं. उस पे वहां पे आपने कर लिया, राइट. देन डंबल रो करते हैं, रोइंग. नाव चलाना जानते हैं ना, नाव चलाना इज व्हाट द रोइंग. तो फिर रोइंग एक्सरसाइजेस यू पीपल डू. तो ये चीज लिखनी है, रोइंग एक्सरसाइज. तो बैक के लिए हो गई, चेस्ट के लिए हो गई, और क्या बोलते हैं आपके आर्म्स के लिए हो गई. अब आ जाते हैं शोल्डर पे. शोल्डर की एक्सरसाइज कौन कौन सी होती है? फ्रंट रेजेस, साइड रेजेस, राइट. फ्रंट रेज, साइड रेज, तो ये एक्सरसाइज हो गई. फिर अपराइट एक नाम होता है एक्सरसाइज का, उसको बाबल लेते हैं और ऐसे खींचते ऊपर. तो 10 ट्रेपीजियस मसल्स, जिनको हम शोल्डर मसल्स बोलते हैं, वो भी फॉर्म होते हैं आपके, राइट. तो ये एक्सरसाइज मेन एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूं, ये कर लेते हैं. और टमी की तो सभी को पता होंगे कि क्रंचेस करते हैं आप, राइट. लेग रेजेस करते हैं, लेग साइकिल करते हैं, लेग रोटेशंस करते हैं, राइट. लेग होल्डिंग होती है, उसको करते हैं. फिर आप एब्स करते हैं, क्रंचेस करते हैं आप 12th में जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको भी क्रंचेस करना पड़ेगा. तो यू पीपल विल हैव टू परफॉर्म क्रंचेस. तो क्रंचेस करते हैं. तो दिस इज व्हाट द टमी एक्सरसाइज. एंड कम फॉर द लेग्स. तो लेग्स में क्या है? स्क्वाटिंग, उठक बैठक लगाते हैं ना, दैट इज व्हाट. देन लंजेस. यू विल हैव one exercise is lunges, squattings, then split squats or weight squat. After that leg extension, leg flexion एक मशीन होती है, ठीक है. उस पर आप लेट जाते हैं और पैरों से वेट को खींचते हैं और पैरों से वेट को नीचे ले जाते हैं, राइट. तो ये अलग हो गया. उसके बाद हैक स्क्वाट. हैक स्क्वाट भी एक मशीन होती है, उस पर पूरा वेट आप उस पर भी एक पोस्चर, पर्टिकुलर पोस्चर पे आते हैं और उसके बाद वेट को पैरों से उठाते हैं, राइट. तो ये हो गए आपके. और फिर आ जाते हैं काफ रेजेस. लास्ट में आ जाते हैं, आप किसी वेट के ऊपर कहीं पे खड़े हो जाते हैं और अपने पैर को खींचते हैं, राइट. टो पे खड़े होने की कोशिश करते हैं, तो काफ मसल्स आपके बनते हैं. तो ये पूरा वेट ट्रेनिंग है, ये पूरा का पूरा वेट ट्रेनिंग और उनके एक्सरसाइज. इसमें आपसे सिर्फ एक्सरसाइज या परफॉर्म करने को तो नहीं बोलेंगे कि परफॉर्मेंस के टाइम पे दे विल आस्क यू टू डू पुशअप्स. They means here your examiner, visiting examiner will ask you to do the push-ups or the crunches, right. ये तो आ जाती है वेट ट्रेनिंग में, ये एक्सरसाइज होती है. और everybody knows how to do push-ups and how to do crunches, right. तो these exercises, ये सारे के सारे एक्सरसाइज ट्रेनिंग मेथड में आपके आते हैं, टोटल ट्रेनिंग मेथड में होते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट योर ट्रेनिंग मेथड. बट डोंट फॉरगेट टू आंसर. Before start of any training, you will have to give that your fitness proof by the certified doctor. Then after, once you have given this, so you will switch into the training. So for every day you will have to do the proper warming up. Then you will start whatever the trainings will be given to you, whether it's isotonic, isometric, isokinetic,
aerobic, anaerobic, or your interval training, circuit training, or fartlek training, or weight training, right? ये सब हो गया. उसके बाद you will have to bring back your body temperature. That is what a limbering exercise is, या जिसको आप कूलिंग डाउन बोलते हैं. तो कूलिंग डाउन वही होता है जिसमें आपका जो while performing, during the performing that weight training or any kind of training, your body temperature raises, right? Your body temperature increases. So you will have to bring it down. You will have to bring that raised temperature up to the normal body temperature, right? तो जो आपका टेम्परेचर बढ़ गया उसको वापस नॉर्मल पे लाना है आपको. You will have to bring it up to the normal body temperature. तो how you are going to do? Again the exercises are same. जो आप वार्मिंग अप में कर रहे थे और जो आप स्ट्रेचेस कर रहे थे उसका लेवल आप पहले वॉक कर रहे थे, अब स्लो वॉक करेंगे. ठीक है, एकदम टहलने वाला वॉक करेंगे, आराम से. भागना दौड़ना कोई भी चीज नहीं है. सी दिस इज अ मोशन, आप आराम से ऐसे ऐसे करें ना. यू आर इन दिस मैनर यू आर गिविंग इंडिकेशन नाउ द ट्रेनिंग इज ओवर, कम डाउन. बॉडी टेम्परेचर को बोल रहे हैं नीचे आ जाओ आप. तो हल्का हल्का इनकम्प्लीट मूवमेंट के साथ वॉक कर रहे हैं तो वॉक विल बी स्लो. और अगर कोई स्ट्रेच कर रहे हैं तो ओनली हाफ स्ट्रेच, फुल स्ट्रेच वहां पे नहीं होगा. ओनली द हाफ स्ट्रेच इज देयर. हाफ स्ट्रेच, हाफ स्लो वॉक, राइट. एक टोटल रेस्टिंग पोजीशन में योगा में देखें तो वो सव आसन होता है ना, तो उसमें आप जाके एकदम ग्राउंड पे लेट जाए. तो रेस्टिंग मोड में जाना है सो दैट आफ्टर 5 मिनट में आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा. एंड आफ्टर दैट 40 मिनट के बाद यू कैन गो एंड टेक द बाथ. उसके बाद ही आप कुछ खा सकते हैं. बट अब यहाँ पे एक थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है. वो कंट्रोवर्सी क्या है? साइंटिफिकली अभी लेटेस्ट रिसर्च के साथ जो है कि ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, जैसे मैंने आपको बोला था कि आप थोड़ा थोड़ा पानी ले सकते हैं. पानी गट 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 करके नहीं पीते हैं, एक सिप ले सकते हैं बस व्हेन यू आर परफॉर्मिंग. आपने देखा होगा जितने भी कॉम्बैट गेम होते हैं, चाहे वो बॉक्सिंग हो, चाहे वो टाइक्वांडो हो, चाहे वो वुशु हो, चाहे वो जीत कनाडो हो, चाहे वो किक बॉक्सिंग हो, कोई भी गेम हो, जब वो कॉर्नर पे जाते हैं तो एक सिप पानी लेते हैं, राइट. सिप एक उस टाइम पे व्हेन यू आर डूइंग ट्रेनिंग और प्रैक्टिस, एट दैट टाइम यू आर नॉट गिविंग. जब ट्रेनिंग, प्रैक्टिस और परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. परफॉर्मेंस में आप पूरी ताकत लगा देते हैं, जब आप तब थोड़ा सा एक सिप पानी ले सकते हैं. तो ट्रेनिंग के टाइम पे भी ले सकते हैं, मगर ये नहीं कि 2-4 लीटर पी जाए आप पानी, नो, राइट. व्हाई? बिकॉज यू आर लूजिंग continuously, constantly you are losing your essential element while training और while performing. जब कोई भी एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे होते हैं या ग्राउंड पे जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, मैच खेल रहे होते हैं, तब भी आप बैडमिंटन देखिए, टेनिस देखिए. तो टेनिस में तो दिखता है ना, वो एक बॉटल उठाते हैं, एक सिप लेते हैं और कुछ थोड़ा सा केला वेला खाते हैं, देन अगेन दे कम. तो कंट्रोवर्सी क्या है कि पहले तो लोग कहते थे कि नहीं आप कुछ नहीं खा सकते, बट यहाँ पे साइंटिफिकली आप थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं. बट इससे कतई आप ये मत समझिएगा कि जब थोड़ा सा ले सकते हैं तो गेम खत्म हो गया, तो हम कूल डाउन करने के बाद पूरा खा सकते हैं. नो, यहीं पे आपको ध्यान देना है, गैप बढ़ाना है आपको. वो 40 मिनट्स जो मैंने बोला था ना कि आफ्टर 40 मिनट यू कैन गो एंड टेक द बाथ, देन आफ्टर यू कैन ईट एनीथिंग, राइट. तरीका ये है. बट लोग पहले ही खा लेते हैं तो वो फेस भी करते हैं, उसके एडवर्स इफेक्ट को भी फेस करते हैं. बट आप ऐसा कुछ ना करें. whenever the examiner is asking about this, तो नो. और एग्जामिनर आपको ऐसे कंफ्यूज जरूर करेगा, जब आप उस टाइम पे खा सकते हैं, जब खत्म कर लिया तो क्यों नहीं खा सकते? व्हाई? बिकॉज बॉडी नीड रेस्ट. रिकवरी का टाइम मिलना चाहिए बॉडी को. थोड़ा सा एकदम से आप see when you are working at that time, the body is working, your voluntary muscles, your cardiac muscles, your involuntary muscles, everybody is working. ठीक है, अभी प्रैक्टिकली आपने काम करना तो बंद कर दिया है, ठीक है. वॉलंटरी मसल को तो आपने क्या बोलते हैं कि कोई काम नहीं दिया है. इनवॉलंटरी मसल्स को भी आपने कोई इस तरह का वर्कलोड नहीं करा है, मतलब नहीं, आप कुछ दे नहीं सकते, ये आप गलत सोच रहे हैं. जैसे ही आपने खाना दिया, जैसे ही द मोमेंट यू हैव सप्लाइड समथिंग to your
to yourself, right? So that shows what your involuntary muscle is not getting the rest. जब उसको रेस्ट नहीं मिलेगा तो ठीक से वो डाइजेस्ट नहीं करेगा. That's why this 40 minute or maybe 1 hour, थोड़ा सा if you increase the gap more than the 40 minutes, so you will get the best result out of that food which you have given. Or immediately after the cooling down, if you have consumed the total amount of food, whatever the food you are consuming every day, उतना पूरा का पूरा आपने consume कर लिया है, तो it's not going to help you. उसका only 70% your body is using, तो it's of no use, right? और बाकी का 30% और मे बी 60% डिपेंडिंग कि आपका बॉडी कितना यूज कर रहा है उसको, राइट? और आपने कितना वर्क एफर्ट करा है. तो फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ योर मसल, तो यू विल सी टू इट कि आप 40 मिनट से थोड़ा 40 मिनट इज द ऑफिशियल टाइम, राइट? 40 मिनट के बाद आप खा सकते हैं. वो 40 मिनट के बाद इमीडिएटली आफ्टर द 40 मिनट भी हो सकता है, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. बट हाँ, आप 40 मिनट्स की जगह 45 या 1 आवर का अगर जो एक गैप दे देते हैं अपने बॉडी को, अपने इनडायरेक्टली आप एक गैप दे देते हैं अपने इनवॉलंटरी मसल्स को, क्योंकि जैसे खाओगे तो व्हेन यू आर ईटिंग दैट मींस यू आर वर्किंग विथ योर वॉलंटरी मसल्स, बट द डाइजेशन you don't have any control over the digestion. तो वो जब आप दौड़ रहे थे, जब आप परफॉर्म कर रहे थे, at that time also your pumping of heart is there, the supply of oxygen, respiration is there, and the circulation is there. Everybody, तो everything is governed by your involuntary muscle only. उस टाइम पे भी वो एकदम पीक पे काम कर रहा था, और थोड़ा सा रेस्ट देके फिर आपने उसको पीक पे डाल दिया, राइट? तो यू कैन नॉट डू दिस. अगर आप ऐसे करते हैं तो दैट मीन्स आप अपने परफॉर्मेंस का 100% रिजल्ट नहीं पाएंगे. इफ यू रियली वांट द 100% रिजल्ट ऑफ योर परफॉर्मेंस, तो आपको ये रेगुलर प्रैक्टिस में करना होगा. ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस थोड़ा थोड़ा एक बाइट तो चलता है, वो दैट वन स्मॉल बाइट, वो बाइट भी नहीं आधा किलो का बाइट हो, नो, छोटा सा आपने प्रोटीन का टुकड़ा या कार्ब्स. ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस प्रोटीन तो एडवाइजेबल नहीं होता है, कार्ब्स इज एडवाइजेबल. तो आपने कुछ, एंड द बनाना इज द रिच सोर्स ऑफ कार्ब. तो आपने देखा होगा टेनिस में वो अक्सर इतना सा एक बनाना होता है पूरा, उसको इतना सा खाते हैं और कितना अच्छा खेलते हैं. इट्स अ रिच सोर्स ऑफ कार्ब्स. या ग्लूकोज ले दो आप, इट्स अ इंस्टेंट एनर्जी, राइट? 40 मिनट्स और 1 आवर के बाद आपका इनवॉलंटरी मसल भी पार्शली रेस्टिंग मोड में होता है इस ड्यूरेशन में. और क्योंकि आप कूल कर रहे हैं तो आपका इनवॉलंटरी मसल को बहुत तेजी से सर्कुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, बहुत तेजी से आपको रेस्पिरेशन करने की भी जरूरत नहीं है. बहुत आराम से आप कर रहे होते हैं, बहुत आराम से आप सांस भी ले रहे हैं, राइट? आपका हार्ट भी बम 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 पंप नहीं कर रहा है, ब्लड सब कुछ नॉर्मल होता है. तो दैट मीन्स पार्शली रेस्टिंग मोड में है वो. भाई आप कुछ देख रहे हैं और आपने आंख बंद कर रखी है, तो मैक्सिमम आप उसके एनर्जी को सेव कर रहे हैं, उसको रेस्ट दे रहे हैं. इनवॉलंटरी मसल को हम पूरी तरह से उसको इफेक्ट नहीं कर सकते, उसकी बॉडी को वर्किंग को, राइट? वी कैनॉट इफेक्ट देयर, वी कैनॉट मेक देम वर्क और वी कैनॉट स्टॉप देयर वर्क, राइट? उसको हम बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते, बट पार्शली रेस्टिंग मोड में हम जरूर डाल सकते हैं उसको. तो ये तरीका है, राइट? नाउ 1 घंटा बीत जाने के बाद, आफ्टर 1 आवर, यू कैन गिव एनीथिंग. दैट एनीथिंग इज ब्रिंग वंडर्स इन योर बॉडी, राइट? इफ यू रियली वांट टू हैव वंडर्स इन योर बॉडी, तो थोड़ा सा टाइम गैप आपको बढ़ाना पड़ेगा. रख दो भैया, थैंक यू, राइट? थोड़ा सा टाइम गैप आपको बढ़ाना पड़ेगा. अच्छा, सर ने कहा था 1 घंटा, मैं 2 घंटे के बाद खाऊंगा, ऐसा भी नहीं करना. तो 40 मिनट से 1 घंटा इज द बेस्ट टाइम, मतलब ऑप्टिमम टाइम है जब बॉडी बहुत अच्छा ग्रो करता है. मतलब 1 घंटा 60 मिनट्स तो बहुत ही अच्छा टाइम है. बट कभी कभी एक्सरसाइज करने के बाद आपको बहुत जबरदस्त तरीके से भूख लग रही होती है, डिमांड क्रिएट हो रहा होता है, तो वो जो आप इतना टाइम आपको देना ही देना है, राइट? 40 मिनट तो हर हाल में आपको देना ही देना है. 40 मिनट से अगर जो आपने थोड़ा सा स्विच कर लिया टुवर्ड्स द 1 आवर, तो समझ लीजिए कि क्या बोलेंगे उसको, यू विल सी वंडर्स इन योर स्किल्स और इन योर परफॉर्मेंस. तो ये वंडर्स चाहिए तो आपको इतना तो पर
पर डे इतना करना ही करना पड़ेगा. आफ्टर वंस यू हैव फिनिश your training, any kind of training, तो you will have to give at least this much of rest. 40 मिनट के बाद आप नहा लें, तो नहाने में 20-22 मिनट लग ही जाएगा आपको, और while जब तक आप फ्रेश होकर आएंगे तो इमीडिएटली आप उसके बाद you can take your food. Is it clear बेटा? This is all about the training method. अभी भी कोई प्रॉब्लम है बेटा आपको तो you can ask me, right? You can ask me